السلام علیکم۔ اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیو سے قومی معلومات کے ساتھ میں ہوں عدیل۔ ڈیفنس سندر میں ڈولفن اسکواڈ نے پیٹرولنگ کے دوران کرائم ہاٹ سپاٹ پر کارروائی کرتے ہوئے 2 مشکوک ملزمان کو گرفتار کر لیا، جن کے قبضے سے ایک پسٹل، ایک رائفل، گولیاں اور میگزینز برآمد کیے گئے۔ ترجمان کے مطابق ملزمان کو مشکوک حالت میں روک کر تلاشی لی گئی اور مزید کارروائی کے لیے تھانہ ڈیفنس بی سندر کے حوالے کر دیا گیا، جبکہ ایس پی ڈولفن اختر نواز نے کہا کہ ڈولفن ٹیمیں جامع حکمت عملی کے تحت ہاٹ سپاٹ پر مسلسل گشت اور سٹاپ اینڈ سرچ کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جیلانی پارکس لاہور میں سالانہ گل داودی نمائش کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں، جس کا وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے ایم ڈی پی ایچ اے راجہ منصور کے ہمراہ جائزہ لیا۔ نمائش میں 175 اقسام کے گل داودی اور میری گولڈ کے گملے، سنو کارنرز، فلاورل ہاؤسز، سیلفی پوائنٹس، مغلیہ طرز تعمیر، بگھی اور دربان خصوصی کشش مرکز ہوں گے، جبکہ فلاورل آرٹ سٹالز، فوڈ برانڈز اور کیفیز بھی شہریوں کی دلچسپی کو بڑھائیں گے۔ بلال یاسین کے مطابق پی ایچ اے نے گزشتہ سال کی نسبت زیادہ محنت کی ہے اور ایک ہفتہ جاری رہنے والی یہ نمائش لاہوریوں کے لیے تفریح کا شاندار موقع ثابت ہو۔ امیر جماعت اسلامی پنجاب محمد جاوید قصوری نے صوبائی دفتر منصورہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا کہ جماعت اسلامی پنجاب نئے بلدیاتی ایکٹ کو مسترد کرتی ہے اور 7 دسمبر کو امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں پنجاب کے تمام ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر احتجاج کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عوامی مسائل کے حل کے لیے بااختیار مقامی حکومت ناگزیر ہے۔ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں گے۔ بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں، ضلعی بلدیاتی حکومت کو نظام میں شامل کیا جائے اور یونین کونسل چیئرمین، وائس چیئرمین، یوتھ، کسان اور لیبر نمائندے براہ راست ووٹوں سے منتخب کیے جائیں، جبکہ بڑے شہروں کا میٹروپولیٹن سٹیٹس بھی بحال کیا جائے۔ اس وقت صوبہ پنجاب کی جو صورتحال ہے، آپ سب کے علم میں ہے کہ مسلم لیگ نون ایک طویل عرصے سے پنجاب کے اقتدار پہ مسلط ہے اور کم و بیش یہ کوئی 35-40 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ اور اگر آپ ماضی قریب میں دیکھیں تو 2009 سے لے کے 2013 تک کا پیریڈ مسلم لیگ نون کا، 2013 سے لے کر کے پھر 2018 کا پیریڈ، پہلا جو 5 سال کا تھا اس میں تو انہوں نے بلدیاتی انتخاب کروائے ہی نہیں، اور 2013 کے بعد عدالتی پریشر پہ انتخابات کروائے گئے، لیکن ایک پورا سال بلدیاتی نمائندوں کو حلف ہی نہیں اٹھانے دیا گیا، اور جو نظام دیا گیا وہ بھی لولا لنگڑا تھا، اس میں اختیارات نیچے نہیں دیے گئے۔ 2018 کے بعد پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور 3.5 سال ان کے دور اقتدار میں بھی پنجاب کے عوام کو بلدیاتی انتخاب سے محروم رکھا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی تو انہوں نے بھی پھر اپنے ادارے بحال نہیں کیے، اور اب پھر عدالت کے پریشر اور الیکشن کمیشن کے آرڈر کے اوپر یہ بلدیاتی ایکٹ منظور کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی نے اس پورے بلدیاتی ایکٹ کا جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں آئینی اور قانونی ماہرین کی موجودگی میں بڑا ڈیٹیل جائزہ لیا ہے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا یہ بلدیاتی ایکٹ یہ پنجاب کے عوام کی سہولت کے لیے نہیں بلکہ مسلم لیگ نون کی پارٹی مفادات کے لیے اس کو ترتیب دیا گیا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آئین کی دفعہ 140 سے واضح طور پہ تقاضا کرتی ہے کہ انتظامی، سیاسی اور مالیاتی اختیارات نیچے منتقل کیے جائیں گے، لیکن انہوں نے جو بلدیاتی ایکٹ دیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ لولا لنگڑا ہے، بلکہ اس بلدیاتی ایکٹ کے ذریعے سے تو آپ عوامی نمائندوں کو امپاور کرنے کی بجائے آپ پنجاب کی بیوروکریسی کو زیادہ طاقتور بنا رہے ہیں۔ یعنی اس بلدیاتی ایکٹ میں ڈپٹی کمشنر اور کمشنر وہ اوپر ہوں گے اور بلدیاتی نمائندے وہ ان کے تابع ہوں گے، ساری اتھارٹیز جو ہیں اس کے اوپر سپرویژن بیوروکریسی کرے گی۔ جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ بیوروکریسی تو پہلے ہی اپنے آپ کو حاکم سمجھتی ہے اور وہ عوام کو محکوم سمجھتی ہے، اور پنجاب حکومت کا یہ بلدیاتی ایکٹ مزید اسی
ब्यूरोक्रेसी ही को ताकतवर बनाएगा, तो हमें ये बताया जाए कि अवाम के हक़ हुक्मरानी के ऊपर ये डाका क्यों डाला जा रहा है। इसी तरीके से इस बल्दियाती एक्ट में एक और बहुत अहम चीज़ है कि आइन का तकादा कहता है कि आप इंतखाबात जमाती बुनियादों पे करवाएं, लेकिन इस एक्ट में पहले मरले में ये तय कर दिया गया है कि इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पे होंगे। फिर 1 महीने में जीतने वाले नुमाइंदों को ये कहा जाएगा कि वो अपनी सियासी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करें। इसका सीधा और वादे मतलब इसके सिवा कुछ नहीं कि जो लोग जीत जाएंगे उन्हें धौंस से, ताकत से, दबाव से, लालच और खौफ के ज़रिए से हुकूमती पार्टी में शामिल करवाने की पूरे जतन किए जाएंगे। और फिर ऐलान किया जाएगा कि इंतखाबात बड़े शफाफ थे और हमने बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए हैं, और फिर फतह के पूरे डोंगरे बरसाए जाएंगे। इसलिए जमात इस्लामी ने यह तय किया है कि इस बल्दियाती काले कानून के ख़िलाफ़ हम एक हमा जहद तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। जनाब हाफिज नईमुर रहमान साहब इस तहरीक को लीड करेंगे, और ये जमात इस्लामी की किसी पार्टी मफाद का मसला नहीं है, ये 12 करोड़ पंजाब के लोगों के बुनियादी हक और उनके हक के हुक्मरानी का मसला है। मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप पंजाब में इस वक्त नीचे उतर के देखें कि सेवरेज के मसाइल, पानी के मसाइल, ज़िले और नीचे गली मोहल्ले में सेहत के मसाइल, लोगों के छोटे छोटे मसले, उनको एड्रेस करने का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। और सारे इख्तियारात पंजाब हुकूमत ने ऊपर की सतह पे MNA और MPs के उसमें, और या फिर ब्यूरोक्रेसी, इसके ज़रिए से पंजाब के अवाम को यरगमाल बना लिया गया है। अब अगर बल्दियाती इंतखाबात अदालत के प्रेशर पे आप करवाने जा रहे हैं तो हम इसके ऊपर मुज़ाहमत करेंगे कि पंजाब के अवाम को बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम दो। लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम काबिल कबूल नहीं है, ये काला कानून है। हमारी डिमांड है कि बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम दो, हक दो अवाम को और बदल दो निज़ाम को। इस नैरेटिव के साथ हम पूरे पंजाब के अंदर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं, और इसके पहले मरहले के तौर पे 7 दिसंबर को इंशाल्लाह पूरे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एहतजाजी मुजाहिरे होंगे, और उन एहतजाजी मुजाहिरों में इंशाल्लाह सिविल सोसाइटी और उसमें वकाला, यूथ, किसान, ये सारे लोग उसमें शरीक होंगे। जमात इस्लामी की ज़िली लीडरशिप उन मुजाहिरों को लीड करेगी, और इन मुजाहिरों के नतीजे में इंशाल्लाह हम पंजाब के इस हक़ के हुक्मरानी को, हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो बल्दियाती एक्ट के अंदर तरमीमात लाए और इसे अवामी ख्वाहिशात और आइन के मुताबिक बनाए। मैं ये भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अगले मरहले के तौर पे हम पूरे पंजाब में दस्तखती मुहिम चलाने जा रहे हैं। हम डिस्ट्रिक्ट सतह पे सेमिनार करेंगे, हम पहले मरहले में आगाही लोगों को देंगे, हम आम आदमी को इस बल्दियाती एक्ट के अंदर जो हुकूमत ने डाका डाला है इसके बारे में पूरी तरह आगाही देंगे, और अगर हुकूमत ने इसके ऊपर अपना रवैया ना बदला तो मैं वादे तौर पे कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह हम पंजाब असम्बली का घेराव भी कर सकते हैं, हम पंजाब असम्बली के सामने धरना भी दे सकते हैं, लेकिन ये बात तय है कि पंजाब के अवाम के हक़ के हुक्मरानी के ऊपर इन मखसूस वरासत की बुनियाद पे चलने वाली पार्टियों को डाका नहीं डालने दिया जाएगा। ये 12 करोड़ पंजाब के अवाम का मसला है। बल्दियाती निज़ाम, ये इसके लिए ज़रूरी है कि ज़िली सतह पे मकामी हुकूमतें कायम की जाएँ। इस निज़ाम में इन्होंने ये भी एक अजीब काम किया है कि बड़े जितने शहर हैं उन शहरों को पहले तो मेट्रोपॉलिटन का दर्जा हासिल था, लेकिन अब ये उन शहरों की लीडरशिप से भी खौफज़दा है। अब उनको टाउन का दर्जा, नहीं, लाहौर जो है अब ये मेट्रोपॉलिटन नहीं है, गुजरांवाला मेट्रोपॉलिटन नहीं है, फैसलाबाद मेट्रोपॉलिटन नहीं है, बल्कि उनको टाउन का दर्जा दिया गया है। गोया इन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं है कि निचली सतह से बल्दियात के नतीजे में एक जेन्युइन लीडरशिप उभर के आए और वो लीडरशिप पंजाब के गली बहलों के मसाइल को हल कर सके। इसलिए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए
पंजाब के 12 करोड़ आवाम से कहना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, किसानों, मजदूरों, मेहनतकशों, ताजरों और ख़वातीन सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ये मौक़िफ़ जमात इस्लामी उसको इनिशिएट कर रही है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये हर जगह से आवाज़ उठे कि पंजाब को बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम दो। लूला लंगड़ा, बेदस्तो पा और ब्यूरोक्रेसी के तसल्लुत वाला बल्दियाती निज़ाम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मैं यहाँ ये बात भी अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो दीगर सियासी पार्टियों के वर्कर्स हैं, गली महल्ले के अंदर जो वर्कर्स हैं, मैं उन वर्कर्स से भी अपील करना चाहता हूँ, वो मुस्लिम लीग नून के हों, वो पीटीआई के वर्कर्स हों, वो पीपल्स पार्टी के हों, हम उन सियासी वर्कर्स से भी कहना चाहते हैं कि इस पूरी मूवमेंट में जमात इस्लामी के साथ आइए। हम मिल करके पंजाब के अवाम को एक हकीकी बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम को दिलाने के लिए अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ाएं। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह इतवार को 7 दिसंबर को जनाब हाफिज नईम उर रहमान साहब लाहौर पंजाब असम्बली के सामने एक बड़े एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करेंगे और वो मुजाहरा वो खिताब ऑनलाइन पंजाब के तमाम अजला में जहाँ जहाँ हमारे मुजाहरे हो रहे होंगे वो भी ऑनलाइन हाफिज नईम उर रहमान के खिताब को भी सुनेंगे और इंशाअल्लाह हम पंजाब के अवाम के हक़ हुक्मरानी के लिए इस पूरी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुल्तान में CPO सादिक अली डोगर ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं और शहरियों में महफूज और जिम्मेदाराना ड्राइविंग के फ़रोग़ के लिए खुसूसी आगाही मुहिम भी शुरू की गई है। साहिवाल में DPO मोहम्मद उस्मान टीपू ने मिशन चौक में ट्रैफिक आगाही कैंप का दौरा किया, जहां शहरियों और सरकारी मुलाजमीन के चालान किए गए और मुफ्त हेलमेट्स भी तकसीम किए गए। DPO ने कहा कि मुहिम का मकसद शहरियों की हिफाजत और हादसात में कमी है, न कि किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाना है, जबकि कम उम्र ड्राइवर्स के वालिदैन या सरपरस्तों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है ताकि ट्रैफिक नज़्म ज़ब्त और जिम्मेदाराना रवैये को फ़रोग़ मिले। कोटमिटन में नए तैनात DPO मोहम्मद इमरान ने चार्ज संभालने के बाद रुझान का दौरा किया, जहां अंजुमन ताजरान ने उन्हें हार पहनाया और साबिक DPO फारूक अमजद भी मौजूद थे। DPO ने सहाफ़ियों से मुख्तसर मुलाकात में कहा कि रुझान में क़याम अमन के लिए भरपूर इक़दामात किए जाएंगे, कच्चे के इलाकों को महफूज बनाया जाएगा और जराए पेशा अनासर के खात्मे को यकीनी बनाया जाएगा। झेलम में डिप्टी कमिश्नर मीर रजा ओसगन ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक और अठिया रूरल डिस्पेंसरी का दौरा किया, जहां तिब्बी सहूलियात अमले की हाजिरी और अद्वियात की दस्तियाबी का जायजा लिया। उन्होंने सेहत के हुकाम को हिदायत की कि मरीजों को मेयारी खिदमात फराहम की जाए, सफाई सुथराई के इंतजामात बेहतर किए जाएँ और अद्वियात की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। ये 2 रोज़ा वज़ीर आला पंजाब के सेहतमंद पंजाब विजन के तहत किया गया। झेलम में डिप्टी कमिश्नर मीर रजा ने गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शम्सपुर और गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीर कॉलोनी का अचानक दौरा किया, जहां निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का जायजा भी लिया गया और तलबा और तलबात से बातचीत भी की। उन्होंने स्कूल इंतजामिया को हिदायत की कि तालीम के लिए साजगार माहौल और बेहतरीन तालीमी सहूलियात फराहम की जाएँ ताकि तालीम का मेयार बेहतर बनाया जा सके। जमात इस्लामी उकाड़ा सिटी की क़यादत में पंजाब बल्दियाती एक्ट 2025 को गैर जमहूरी और बल्दियाती इदारों को कमज़ोर करने वाला करार देते हुए फौरी तौर पर वापस लेने और मुकम्मल बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम बहाल करने का मुतालिबा किया। अमीर जमात इस्लामी उकाड़ा सिटी इंजीनियर सलमान अत्तर शेख ने कहा कि नए एक्ट के तहत मुंतखब नुमाइंदों के इंतज़ामी और माली इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं, जिससे मकामी हुकूमतें अवामी मसाइल का बराह रास्त हल फराहम करने से महरूम हो जाएगी। मुकर्रीर ने जोर दिया कि हकीकी मानों में बाइख्तियार और माली तौर पर खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम अवामी फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी है। खान साहब का जो एक हक दो अवाम को एक बाकायदा तहरीक का जो एक हम शुरू कर चुके हैं, उसके अंदर अभी पंजाब के अवाम के लिए बल्दियाती इंतखाबात का फौरी होना और उसके साथ साथ ये जो इसके अंदर मसाइल हैं इनको दूर किया जाए और बल्दियाती इंतखाबात का जल्द से जल्द जो इनेकाद, जिसके अंदर असली ताकत जमहूरियत की रूह के मुताबिक इन अवामी नुमाइंदों के पास हो, ये हमारा मुतालबा है, ये हम चाहते हैं और अवाम को उनका हक
जो है हक हुक्मरानी वो लाजमन जो है वो दिया जाए। सर्दियों की शिद्दत बढ़ने के साथ ही शहरियों ने लंडे बाजार का रुख कर लिया। वहां पर चीज़ों की कीमतें क्या चल रही हैं, तफसील बताएंगे चोटी ज़ेरीन से हमारे नुमाइंदे इसरार अहमद। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही चोटी ज़ेरीन के शहरियों ने भी लंडा बाज़ार का रुख कर लिया, जहां पर बाज़ार की निस्बत लंडा बाज़ार में चीज़ें इंतहाई कम रेट पर मिल रही हैं। हमारे साथ मज़ीद एक शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल ऐसे है, ठंड बढ़ गई है। हम ये सामान लेने आए, जैकेट टोपी मार्केट में ज़्यादा महंगी मिलती है, लेकिन उसकी निस्बत इधर लंडे बाज़ार में थोड़ा कम रेट है। फिर भी हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि थोड़ा टैक्स ये कम किया जाए और गरीब को सहूलत और रिलीफ मिला जाए। जी शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, शहरियों का कहना है कि लंडा बाज़ार में बाज़ार की निस्बत तो इस वक्त चीज़ें कम रेट पर हैं, लेकिन मज़ीद हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जो टैक्स हैं वो कम कर सके, कम करें ताकि आवाम को मज़ीद रिलीफ मिल सके। जी। शकरगढ़ और नालोवाल में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में इजाफे के बाद ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयों में एक हफ्ते में 5600 चालान, 1000 गाड़ियां बंद और 131 मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि 1 करोड़ रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। नाके लगाकर चेकिंग सख्त कर दी गई। मोटरसाइकिल सवारों को बगैर हेलमेट, कम उम्र ड्राइविंग, ब्लैक पेपर और सीट बेल्ट ना बांधने पर कार्रवाई की गई। डीएसपी ट्रैफिक जावेद इकबाल ने शहरियों से अपील की कि वो ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और हादसा से बचाव को यकीनी बनाएं। मानावाला में पैरा फोर्स के अहलकार ने रेडी बान इरफान पर तशद्दुद किया और इसे गाड़ी में बिठाकर मारा पीटा। वाकया बाजार के अवाम के सामने पेश आया। मुतासरा ने बताया कि रिश्वत न देने पर अहलकार ने इसे निशाना बनाया। शहरियों ने कानून की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया है और पैरा फोर्स के गरीब मेहनत कशों पर तशद्दुद के रवैये की मजम्मत भी की है। ਚਾਚੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੈੜਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਛਾੜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਰੇੜੀ ਵੀ ਡੱਕੀ, ਰੇੜੀ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨੇ ਚੰਡਾ ਡਾਲੇ ਭਾਗ ਮਾਰੀਆਂ, ਡਾਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 2000 ਰੁਪਇਆ ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ ਤੇ ਡਾਲੇ ਅਫਸਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ, 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਪਿਛਲੀ ਬੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੀ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗਾ, ਪਿਛਲੀ ਬੜੀ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਾਂਗਾ। निशर फिरोज के गांव बादल पनहोर की रिहायशी ने नामालूम चोरों की जानिब से 3 बकरे चोरी होने पर एहतजाज किया। उन्होंने बताया कि वाकया की FIR दर्ज है, लेकिन 5 दिन गुजरने के बावजूद मवेशी वापस नहीं किए गए। मुतासरा खातून ने SSP नौशेर फिरोज से अपील की है कि चोरी शुदा बकरे फौरी तौर पर वापस कराए जाएं ताकि वो अपने घर का गुजर बसर कर सकें। मुंहिंजा 3 आहे त गुम थी विया आहिनि, अॼु ताईं वापसि कोन अचिया आहिनि। महिरबानी करे त मुंहिंजा हुतां वठी गुज़र सफ़र इन रिज़्क़ ते कंदी आहियां त मूंखे उहे वापसि थियनि ऐं मूंखे भई वापसि थियनि। ऐं मां नंढड़ा मासूम आहिनि, मुंहिंजो पीउ मुड़ुसु बि गुज़ारे वियो आहे, मुंहिंजो गुज़र सफ़र इन चैलनि ते आहे। मुंहिंजा 3 चेला विया आहिनि, मूंखे भई वापसि थियनि। ॾिनी त अञा कुझु बि कोन थियो आहे त मुंहिंजा इहे वापसि थियनि चेला। साहब खे अपील थी कयां नौशर फिरोज। सजावल में GBLS हाजी सुभान पंजाबी स्कूल में बच्चों का दिन बड़े जोशो जज्बे से मनाया गया, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया, तालीमी हुकाम और मुख्तलिफ इदारों के मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब में तलबा ने रंगारंग टैबलोज और तकारीर भी पेश की, जबकि मुकर्रीन ने बच्चों की तालीम और अखलाकी तरबियत की अहमियत पर जोर दिया। आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए। हैदराबाद में सुई गैस कंपनी की जानिब से घरेलू सारिफीन के लिए 12 घंटे गैस की लोड शेडिंग की। ये सब आखिर क्या मामला है, तफसील बता रहे हैं शहबाज। बड़े शहर हैदराबाद में जहां मौसम में सरमा की आमद आते ही स्विंग गैस की लोड शेडिंग में इजाफा देखने को मिला। वहीं दूसरी जानिब इंतजामिया की तरफ से LPG की दुकान SOPs के तहत बंद करवा दी गई। शहरी घर के लिए महंगी लकड़ियां खरीदने पे मजबूर। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद आए, हम इनसे बात कर लेते हैं। जी देखिए, लकड़ी तो जो है नापेद हो गई, इस वक्त महंगी तरीन हो गई है, गैस होने के बावजूद नहीं मिल रही। इंतज़ामिया ने ख़ासतौर से हैदराबाद DC साहब ने जो है LPG की दुकानें तमाम बंद करा दी गई हैं, जिसकी वजह से आम सार्फिन परेशान है। 12 घंटे से 8 घंटे से 12 घंटे की लोड शेडिंग है गैस की।
इसलिए मजबूरन खाना तो खाना है ना यार, रोटी खानी है हम लोगों ने। अब हम डीसी साहब से यही अपील करेंगे, खुदारा हमारे को इस आजाब से निकालें, या तो गैस दें या एलपीजी की दुकानें एसओपी की खोलें, खुलवाई जाए। आवाम तो परेशानी से बचे ना। अब लकड़ी 800 रुपये से 1200 रुपये मन तक बिक रही है। गैस तो एक अरसे से खैर प्रॉब्लम है ही हमारे पास यहाँ हैदराबाद में, शायद पाकिस्तान में ही है। अच्छा, वो एक अरसे से जो प्रॉब्लम चल रही है, अब जो सर्दी जब से शुरू हुई है तब से एक तो ये एलपीजी वगैरह बंद कर दी इन्होंने। अच्छा, आवाम तो पहले ही परेशान है। अच्छा, दूसरा ये कि गैस अगर सुबह में एक टाइम आ रही है तो पूरा दिन गैस नहीं है। अब परेशानी क्या है कि लकड़ियाँ हैं तो वो भी महंगी हैं, वो गरीब आदमी कहाँ जाए, कोई पुरसाने हाल नहीं है। हाँ, तो ऐसा ही हो सकता है। बाकी ये कि चाहिए इंतज़ामिया को कि इसका नोटिस लें, भरपूर नोटिस लिया जाए, या तो एलपीजी वगैरह जो है वो हमें मैसर किया जाए, या उसके लिए ये लकड़ी है ये सस्ती की जाए, ठीक है ना। और ये तो 40 साल पीछे हम दोबारा चले गए हैं कि वो लकड़ियाँ जो हमने जलाना शुरू कर दी है, वरना अब तो लकड़ियों का दौर ही नहीं है हमारे पास, वो चूल्हे ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। बादशाह डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस होम डिपार्टमेंट। जहाँ तक मेरे इल्म के अंदर है, एलपीजी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। जो लोग भी पैक शंडा काम करना चाहते हैं, एसओपीज़ के तहत काम करना चाहते हैं, उनको बिल्कुल इजाज़त है, वो दुकान अपनी खोलें, कारोबार करें, पैक शंडा काम करें। लेकिन पाबंदी सिर्फ डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से वो डिकेंटिंग के ऊपर लाई गई है, जो कि धमाकों का बाइस बन रहा है। बहुत शुक्रिया शहबाज अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे। खैरपुर में ए सेक्शन थाने की हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबले के दौरान 2 पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि डाकू मुकाबले के बाद फरार होने में कामयाब रहे। ढेरकी में लेबर कॉलोनी में 7 साल कबल 25 बिस्तरों पर मुश्तमिल सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया गया था, लेकिन 7 साल गुजरने के बावजूद हॉस्पिटल की तामीर नामुकम्मल है और ये आज तक एक खंडर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बुनियादी ढांचा भी मुकम्मल न हो सका। मोतिहारी में भटशाह में माजूरों के आलमी दिन पर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस के चेयरमैन राना गुलाम नबी राजपूत की सदारत में परवखार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सहाफ़ियों, समाजी शख्सियात और नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन सिंध खादिम हुसैन समेत दीगर ने शिरकत की। तकरीब में माजूर अफराद के हुकूक, फलाह बहबूद और माशरती शमूलियत पर रोशनी डाली गई और शुरका को अजर के तोहफ़े भी पेश किए गए। राना गुलाम नबी ने कहा कि माजूर अफराद की मदद और रोज़गार के मौक़े फराहम करना इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। मोतिहारी में दरगाह हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के कायम मकाम से ज़्यादा नशीन सैयद मुस्तफ़ा हुसैन शाह लतीफ़ी ने कहा कि सिंध के साथ किसी भी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सूबे को तकसीम करने का ख्वाब महज ख्वाब ही रहेगा। भटशाह में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शाह लतीफ़ ने अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया है, जिस पर अमल नागुज़ीर है, जबकि कबायली तनाज़ात सिंध के लिए लानत है, जिनके खात्मे के लिए हुकूमत और बरादरियों को किरदार अदा करना होगा। उन्होंने लतीफ़ी जमात और शाह लतीफ़ फाउंडेशन को मज़ीद मुनज़्ज़म करने के अज़म का इजहार भी किया है और साफ़ी बरादरी के किरदार को सराहते हुए उनके मसाइल हल करने की भी अपील की है। लियाकतपुर में भट्टी चौक इलाहाबाद में बरसाती पानी के खाले पर स्लैब न होने के बायस खतरनाक गड्ढा बन चुका है, जिससे आए रोज ट्रैफिक हादसात और गाड़ियों का नुकसान पहुंच रहा है। दुकानदारों, राहगीरों और गाड़ी मालिकान ने हुकूमत पंजाब से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर खाले पर स्लैब लगाई जाए ताकि शहरियों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ की जा सके। खैरपुर में 20 सेक्शन थाने के हुदूद जानवरी गोट के करीब तेज रफ्तारी ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल को टक्कर के नतीजे में एक शहरी जाँ बहक हो गया, जबकि एक शहरी शदीद जख्मी हो गया। वाक़े के बाद शहरियों ने लाश और जख्मी को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि पुलिस ने मामले की तहकीकात का आगाज कर दिया है। नसीराबाद में डीआईजी कैप्टन रिटायर्ड आसिम खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास में चोरी, डकैती और दीगर जराइम पर काबू पाने और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए फौरी और सख्त इक़दामात की हिदायत जारी की गई। इजलास में मुतल्लिका अफसरान ने बज़रिया ज़ूम शिरकत की, जबकि शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी, गश्त में इजाफा, मशकूक अफराद की चेकिंग और CCTV निगरानी मौसर बनाने पर जोर दिया गया। डीआईजी ने वाज़ेह किया कि स्मगलिंग में मुलविस अफराद और सहूलतकारों के खिलाफ बिला इम्तियाज सख्त कार्रवाई की जाएगी और अमन व अमान का क़याम पुलिस की अवलीन तरजीह हो। स्पेशल टीवी से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ स्पेशल टीवी।